Okay, so in the previous class, we have solved a numerical on the design of the helical spring. है ना? So we have completed all the steps. This is the diagram in which all the dimensions of helical spring are shown. So diameter of the wire was calculated 7 millimeter. So it is shown in the diagram. So this is the 7.5 is the diameter of the wire. It is small d. It is shown over here. Capital D we have got 42 mm. That is mean coil diameter. So 42 is the mean coil diameter. So it is shown over here 42. This 35 is the inside diameter. So this inside diameter can be found the mean diameter minus wire diameter. Diameter minus wire diameter is the inside diameter. So it is 42 minus 7. It is 35 mm. And outside diameter can be found by D plus D. So it is 35 plus 7. It is 42 mm. So outer diameter, inner diameter, and mean diameter. And this is the free length, LF. Free length was coming 109.34, so it rounded to 110 mm. And this is the pitch. It is the distance between the two adjacent coils. It is the pitch. So all the dimensions are shown in this diagram of that numerical. Now this is a practice question for you. So in this practice question, I am just interested in what will be P and what will be delta. If you are knowing P and delta, then you can do this question in the same manner. You have to calculate the wire diameter, mean coil diameter, and number of active coils. है ना, यही तीनों चारों चीजें हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाली है, इससे ज्यादा चीजें निकाली हैं. तो इस क्वेश्चन को जरा पढ़िए, मैं भी पढ़ता हूं और आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में फोर्स कितना है और डेल्टा कितना है. सेफ्टी वाल्व ऑपरेटेड बाय ए हेलिकल टेंशन स्प्रिंग. ठीक है, तो इसका जरा डायग्राम भी दिया हुआ है. So this is a safety valve. This is a valve. So this is the diameter of the safety valve, and it is the pressure developed in the cylinder. So this valve, this is a valve, and this is the helical spring. So when the pressure in the valve is more than a certain limit, then it lift up. Due to this lift up, there will be extension in this spring. So it is a helical extension spring. It is a helical extension spring. So spring is used to operate the valve when the pressure inside the valve is more. And this is the fulcrum. This is the fulcrum. And this is the lever. This is the 75 millimeter length and 150. So lever length is 150 plus 75 is 200 millimeter lever length. Now read the question. So diameter of the valve is 50 millimeter. So diameter is known to us. So diameter of the valve dV is 50 millimeter. So pressure is P. So force developed can be found by area of the valve is pi by 4 dV square into the pressure. So this is the pressure. Now this is the force developed in the valve. So I can say it will be PV. Force developed in the valve. Now that can be found by area of cross section multiplied by the pressure. So here diameter of valve is given. In normal operating conditions, the valve is closed and the pressure inside the chamber is 0.5 Newton per mm square. So initial pressure is 0.5 and the valve is closed. And a valve is closed, pressure is 0.5 at that time. The valve is opened when the pressure inside the chamber increases to 0.6 megapascal. When the pressure is 0.6, valve is open, means the valve is lift up. So maximum lift of the valve is 5 millimeter. So lift is given 5 millimeter. Okay. The spring index can be taken as 8, C equal to 8. Spring is made of weighted and cold drawn material is given. Tensile strength SUT is given 1200.
Modulus of rigidity G is given 81370. Permissible shear stress can be taken as 30% of the ultimate tensile strength. So top permissible can be taken as 0.3 SUT. Design the spring and calculate wire diameter. है ना? अब वायर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए फोर्स कमिंग ऑन द स्प्रिंग. मीन कॉइल डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए यू नीड डेल्टा डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग. सो टू पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट, पी एंड डेल्टा. जस्ट होल्ड. हाँ अविनाश जी बोली क्लास है 301 है ना? हाँ मेरी ओके. So permissible shear stress for the spring wire can be taken as 30%. Wire diameter, so I need P and I need delta. So what is P and delta? If you know P and delta, then the question is easy. है ना? जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया है हम वैसे ही कर सकते हैं. तो जरा बताइए इस क्वेश्चन में P की वैल्यू क्या है और डेल्टा की वैल्यू क्या है ना? P और डेल्टा कमिंग ऑन द स्प्रिंग, नॉट ऑन द वॉल. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉल. We have to find the wire diameter of the spring. So what is the force coming on the spring and what is the deflection in the spring? ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये फलक्रम है, तो इस फलक्रम पर एक तो इक्वेशन यहाँ पे यूज होती है, समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू 0. समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट इक्वल टू 0. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे द फोर्स इज कमिंग पीवी, है ना? फोर्स इन द वॉल it is PV and the force in the spring is PS. Force coming on the spring is PS, or you can say P. So when you take the moment, you have the equilibrium equation PV into 75, force into distance, and a moment at this point. So PV into 75, it is a clockwise movement. So I put negative over here. PS into 150, so you can write PS into 150, या आप ऐसा कर सकते हैं PV into 75 is PS into 150. Okay, so this one equation you are having by the moment, and one more equation you can say, just I am clearing the ink over here. So I have one equation, force in the valve into distance 75 equal to force in the spring into distance 150. So 75 to the 150. So force in the spring is force in the valve divided by 2. Now force in the valve can be calculated pi by 4 d square. The diameter of the valve is given 50 millimeter. So it is pi by 4 50 square into pressure. Pressure is given or not? The information is given when the pressure is 0.5, the valve is closed. When the pressure is 0.6, the valve is open. So what is the change in pressure? Change in pressure is 0.1 megapascal. So due to this change in pressure, what will be the force generated in the valve? ठीक है, valve के अंदर पहले से भी कुछ force है, वो 0.5 pressure की वजह से है. जब pressure 0.6 हो गया, तो valve का जो lift है वो 5 mm है. ठीक है, तो ये जो 5 mm का जो लिफ्ट है ये चेंज इन प्रेशर की वजह से है ना? तो चेंज इन प्रेशर इज 0.1, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक 0.1 हियर, नॉट 0.5, नॉट 0.6. वेरी इंपॉर्टेंट, वी विल टेक चेंज इन प्रेशर. सो जस्ट सॉल्व इट. व्हाट इज द फोर्स कमिंग इन द वॉल? सॉल्व कर दीजिए जरा इसको. कितना आ रहा है? पाई बाय 4 50 स्क्वायर इंटू 0.1, पाई डिवाइडेड बाई 4 into 50 square into 0.1. कितना आ रहा है संदीप? बोलिए. 196.34. 196.35 है? 35 न्यूटन. आंसर न्यूटन है. इट इज आंसर इज इन न्यूटन because area in millimeter square and pressure is Newton per mm square. So mm square will be cancel out. So it is Newton. So when 196.35 divided by 2, so this will give you how much value? 98.17. So this will give you 98.17 न्यूटन. तो देखिए आपको स्प्रिंग का फोर्स मिल गया, और जैसे ही स्प्रिंग का फोर्स मिल गया फिर तो काम आसान है. टॉ इक्वल टू क्या होता है? K
मल्टीप्लाइड बाई 8pc बाई पाई डी स्क्वायर, है ना। अब क्वेश्चन में सी दे रखा है, पी आपने निकाल लिया 98.17, है ना। वायर डायमीटर अननोन है, के आपका वॉल फैक्टर है, वॉल फैक्टर सी पता है तो के भी पता है, एंड टॉप परमिसिबल स्ट्रेस है 0.3 SUT, तो एवरीथिंग इज नोन इन दिस इक्वेशन, सो यू कैन फाइंड द वायर डायमीटर। तो इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ मच फोर्स इज कमिंग ऑन द स्प्रिंग इन दिस सिनेरियो, है ना। सेफ्टी वॉल्व इज ऑपरेटेड बाय द स्प्रिंग, तो आपको मोमेंट की इक्वेशन लगा करके, है ना, और जितना प्रेशर में चेंज हो रहा है उससे जो फोर्स जनरेट हो रहा है उस फोर्स का आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, देन दैट इज द रिक्वायर्ड फोर्स इन दिस। अब डिफ्लेक्शन निकालना है। अब डिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे कि स्प्रिंग में डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, इसका लिफ्ट कितना है 5 mm, इसका एक्सटेंशन कितना होगा ये बताना है। तो देखिए इसके लिए भी बड़ा आसान तरीका है, कैसे कर सकते हैं आप, यू कैन डू इन दिस वे। देखो ये पॉइंट का लिफ्ट है 5 mm, तो इसको 5 mm उठा देते हैं ऊपर, इट इज 5 mm, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट तो A डैश पे आ गया। अब ये जो B पॉइंट है, इसके लिफ्ट होने की वजह से लीवर की जो न्यू पोजीशन है ना, वो लीवर की जो न्यू पोजीशन है वो इस फलक्रम वाले पॉइंट से होते हुए, है ना, इसी पॉइंट से जाएगी, फलक्रम वाले पॉइंट से होते हुए एक यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगा। सो B पॉइंट की नई सिचुएशन हो जाएगी B डैश। सो दिस BB डैश इज द डेल्टा, इट इज द डिफ्लेक्शन इन द स्प्रिंग। आपको BB डैश निकालना है, ठीक है। A डैश आपको पता है 5 mm और आपको BB डैश फाइंड करना है। तो जब ये सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, है ना, ट्राइंगल नंबर 1 एंड ट्राइंगल नंबर 2, है ना, लेट द फलक्रम इज F और O, so your triangle OAA dash, OAA dash is similar to triangle OBB dash. Both the triangles are similar, है ना, and the corresponding sides of the triangles are proportional. So you can write 5 divided by delta, corresponding sides ratio, equal to 75 divided by 150, है ना. So from here you will find delta equal to 10 millimeter. So extension in the spring or deflection in the spring is 10 millimeter. And once you have delta, then you have formula. What is the formula? 16. What is the formula? 8 PDQN. 8 PDQN divided by GD4. So now delta is available 10 millimeter. Force, अब force कितना लोगे आप बताओ? How much force you will take? ये डिफ्लेक्शन 10 मिलीमीटर का किसकी वजह से हुआ है, कितने फोर्स की वजह से हुआ है? भाई यही फोर्स है जो अभी हमने निकाला स्प्रिंग पे, 5/4 जो भी हमने निकाला था, पी की वैल्यू जो जस्ट कैलकुलेट की है वही फोर्स है। P इज आल्सो नोन, D इज द कॉइल डायमीटर। कॉइल डायमीटर के लिए क्या फॉर्मूला है? CD, C पता है, स्मॉल d पहले स्टेप से पता है, तो D भी पता है। N नंबर ऑफ कॉइल्स ये अननोन है, G की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 81370, स्मॉल d आपने पहले स्टेप से पता कर लिया है, तो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ कॉइल्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बस मैंने यही समझाना था कि वायर डायमीटर के लिए आपको फोर्स की जरूरत है, मीन कॉइल के लिए आपको डेल्टा की जरूरत है। फोर्स निकालने में मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करिए, डेल्टा निकालने में सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल्स अप्लाई करिए। ठीक है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स निकल ही जाएगा, मीन कॉइल डायमीटर D इक्वल टू CD होता है। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर प्रैक्टिस, है ना, आप इसे कर लीजिए, जस्ट फॉर प्रैक्टिस। Okay, now one more question for practice, or it is based on the trial and error method. ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो ट्रायल एंड एरर मेथड में मैंने क्या बताया था कि हम कुछ D अज्यूम कर लेते हैं, है ना। लेट द वायर डायमीटर इज 3 मिलीमीटर, हमने कुछ भी अज्यूम कर लिया स्वाभाविक से 3 मिलीमीटर, और इस D के अकॉर्डिंग वी कैलकुलेट द इंड्यूस्ड स्ट्रेस, है ना। इंड्यूस्ड स्ट्रेस क्या फॉर्मूला है? वही फॉर्मूला है K 8pc by pi d स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या करेंगे, इंड्यूस्ड स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि हमें देखो फोर्स पता होगा क्वेश्चन में, स्प्रिंग इंडेक्स पता होगा, वायर डायमीटर हमने अज्यूम कर लिया है, ट्रायल एंड एरर है, वायर डायमीटर अज्यूम कर लिया, सो वी कैन फाइंड टॉ आई मिल गया। नाउ कंपेयर दिस टॉ आई विद टॉ पी। इफ दिस टॉ आई इज लेस देन टॉ पी, then design it safe, else if it is not, then go to change the diameter. So your wire diameter will be 3.5. Next trial will be 3.5. From 3.5, you again check induced stress, compare with the permissible stress.
If it is safe, then okay. If it is not okay, then again increase the wire diameter to 4 mm step by step. So this is the trial and error procedure. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को पढ़ना है आपको और आपको ये बताना है कि इस क्वेश्चन में P और डेल्टा कितना है। स्प्रिंग के क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि you identify what is the force coming on the spring and what is the deflection in the spring. Once these two parameters are known, then design is simple. तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और ये बताइए कि P और डेल्टा क्या है। उसके बाद तो ये काम आसान है, ट्रायल एंड एरर से कर लीजिए, चाहे जनरल प्रोसीजर से कर लीजिए, किसी भी मेथड से डिजाइन कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कितना P है और कितना डेल्टा है। तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एन ऑटोमोटिव सिंगल प्लेट क्लच विथ 2 पेयर्स ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेस, है ना, 2 पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेस हैं। एक पेयर होती है फ्लाईव्हील और फ्रिक्शन लाइनिंग के बीच, दूसरी पेयर होती है प्रेशर प्लेट और फ्रिक्शन लाइनिंग के बीच में, है ना। क्लच के अंदर 2 फ्रिक्शनल सरफेसेस। ट्रांसमिट्स 300 न्यूटन मीटर टॉर्क, ठीक है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, इतने आरपीएम पे हो रहा है। ठीक है, क्लच का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन क्लच का क्वेश्चन है। तो क्लच के क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, लेट मी क्लियर इट फर्स्ट। तो कभी भी क्लच का कोई क्वेश्चन है तो क्लच में जो टॉर्क डेवलप होता है, टॉर्क की वैल्यू जो होती है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय फोर्स डिवाइडेड बाय 4 इंटू डीओ प्लस डीआई। ठीक है, ये आपने थ्योरी ऑफ मशीन में भी पढ़ा होगा। यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के अकॉर्डिंग ये टॉर्क का एक इक्वेशन होता है जो क्लच में एप्लीकेबल होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जनरली क्वेश्चन में दे रखा होगा, हम पढ़ते हैं, यहाँ पर भी होगा। डीओ जो है वो आउटर डायमीटर होता है और डीआई जो है वो इनर डायमीटर होता है डिस्क का। सो इनर एंड आउटर डायमीटर ऑफ द फ्रिक्शन डिस्क आर 170 एंड 270। तो डीओ यहाँ पे दे रखा है 270 और डीआई आपको दे रखा है 170। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.35, तो म्यू इज आल्सो गिवन 0.35। द नॉर्मल फोर्स ऑन द फ्रिक्शन सरफेस इज एक्सर्टेड बाय 9 हेलिकल स्प्रिंग्स, है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंग्स की जो नंबर है वो 9 है ना। तो जो भी फोर्स कैलकुलेट होगा वो 9 स्प्रिंग्स बियर कर रही हैं उसे, है ना। देन यू हैव टू डिवाइड दैट फोर्स बाय 9 टू गॉट द फोर्स एक्सर्टेड बाय सिंगल स्प्रिंग। ठीक है, 9 स्प्रिंग्स का फोर्स निकलेगा, उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें सिंगल स्प्रिंग का फोर्स मिल जाएगा। तो ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, ये 9 स्प्रिंग्स के द्वारा बियर किया जा रहा है। ठीक है, तो पहले P निकालिए, फिर P डिवाइड बाय 9 करिए, देन यू विल गेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय सिंगल स्प्रिंग। ठीक है, अब देखिए टॉर्क कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। टॉर्क दिया हुआ है 300 न्यूटन मीटर, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि विथ 2 पेयर ऑफ फ्रिक्शन सरफेसेस, है ना। तो 2 पेयर से 300 न्यूटन मीटर है टॉर्क की वैल्यू, तो एक पेयर से कितनी होगी, तो एक पेयर से ये हो जाएगी 300/2, यानी कि 150 न्यूटन मीटर। और जब आप इसे न्यूटन मिलीमीटर में चेंज करेंगे देन इट इज 150 इंटू 10⁻³ न्यूटन मिलीमीटर। तो अब इस फॉर्मूले को जब अप्लाई करते हैं तो mt कितना है आपका 150, है ना। ये 300 का हाफ किया है मैंने क्योंकि ये 2 पेयर का है इस वजह से। तो इट इज 150, म्यू गिवन है, p हमें निकालना है, do प्लस di गिवन है 4। तो यहां से हम p की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जरा सॉल्व कर दीजिए कितना आ रहा है ना। तो देखिए mt हो गया 150 इंटू 10⁻³ म्यू हमें दे रखा है 0.35 मल्टीप्लाइड बाई p हमारा अननोन है, do हमारा 270 है, di 170 है, डिवाइडेड बाई 4। इसको जरा सॉल्व करिए और बताइए कि p कितना आ रहा है, फोर्स कितना। 3896.1 न्यूटन। 3896.1। 96.1। ओके, सो p इक्वल टू 3896.1 न्यूटन। अब ये फोर्स 9 हेलिकल स्प्रिंग्स इसको बियर कर रही हैं, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय सिंगल स्प्रिंग कितना हो जाएगा 3896 डिवाइडेड बाय 9। तो फाइनल जो p होगा, नेट p विल बी 3896.1 डिवाइडेड बाय 9। सॉल्व करिए कितना है 432.92। यस 432.92। तो ये एक्सरसाइज जरूरी है आपको आना, ठीक है ना। क्लच के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं, तो क्लच के क्वेश्चंस में आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखिए, यहां से आप p को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेल्टा बताना है आपको कि डेल्टा कितना लोगे।
तो चलिए मैं जरा सा इसको फिर से क्लियर कर देता हूँ। तो हमें P तो मिल गया है ना, कि P की वैल्यू कितनी है, जो भी हमारी आई थी 3896 डिवाइड बाई 9 कितना आया था 4, आंसर बताएं कितना आया था डिवाइड करने के बाद। 432.9 यानी 433 हो जाएगा। हाँ नहीं 0.9 से ही करो, यहाँ राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं है। सो एन ऑटो, यहाँ तक हमने क्वेश्चन पढ़ लिया था, है ना। अब आते हैं हम 9 हेलिकल स्प्रिंग के बाद। सो दैट द क्लच इज ऑलवेज एंगेज, द क्लच इज डिसएंगेज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स फर्दर कंप्रेसेस द स्प्रिंग, है ना। क्लच का यूज क्या है, एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग, यही यूज होता है क्लच का। स्प्रिंग इंडेक्स इज 5, सी दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स भी दिए हुए हैं, n इक्वल टू 6, तो nt कितना हो जाएगा 6 + 2, है ना। यदि आप एंड कंडीशन स्क्वायर और ग्राउंड लोगे तो 6 + 2 यानी कि nt आपका 8 हो जाएगा। जी आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है 81370, नो प्रॉब्लम। परमिसिबल शियर स्ट्रेस फॉर द स्प्रिंग वायर इज 30% ऑफ द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो टॉ इक्वल टू 0.3 SUT, इट इज आल्सो गिवन। डिजाइन द स्प्रिंग एंड स्पेसिफाई देयर डायमेंशंस, ठीक है। तो नाउ एवरीथिंग इज ओके। पी आपको पता है ना। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइल्स तो पूछ ही नहीं रहा है, इसलिए डेल्टा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो देयर इज नो नीड टू फाइंड डेल्टा हियर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स ऑलरेडी गिवन है, नंबर ऑफ एक्टिव कॉइल्स ऑलरेडी गिवन है। तो बस अब मैं एक स्टेप करके दिखा देता हूँ ट्रायल एंड एरर का, और उसमें देखते हैं कि स्प्रिंग सेफ है या अनसेफ है, फिर ऐसे ही वो रिपीट होती जाएगी प्रोसीजर। तो पहला स्टेप करते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप करने के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कुछ वायर डायमीटर। तो आप बताइए कितना अज्यूम करना चाहेंगे, 2, 3, 2.5, जो भी आप अज्यूम करना चाहें। तो चलिए शुरू में हम अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द वायर डायमीटर इज 3 mm, है ना, 3 mm अज्यूम कर लेते हैं। सो फर्स्ट ट्रायल नंबर 1, लेट d इक्वल टू 3 mm, ठीक है। अब हम जनरल प्रोसीजर से डिजाइन नहीं कर रहे हैं, ट्रायल एंड एरर से डिजाइन कर रहे हैं स्प्रिंग को। तो d हमने 3 मान लिया, d3 मानते ही हम टॉ इंड्यूस निकाल लें और टॉ परमिसिबल निकाल लें। तो चलिए पहले टॉ परमिसिबल निकाल लेते हैं। टॉ परमिसिबल क्या होता है, 0.3 SUT होता है। अब 0.3 SUT, 0.3 इंटू SUT, SUT देखो क्या क्वेश्चन में गिवन है, देखो द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं गिवन है ना, SUT तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम, वी विल रेफर डाटा बुक, वी विल रेफर डाटा बुक, क्योंकि हमें मटेरियल गिवन है। तो मटेरियल में क्या गिवन है, स्प्रिंग्स आर मेड ऑफ पेटेंटेड एंड कोल्ड ड्रॉन स्टील, तो हमें मटेरियल गिवन है और उसका ग्रेड भी गिवन है, ग्रेड नंबर 2। तो पेटेंटेड एंड कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर में 4 ग्रेड आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 जो है वो लो ड्यूटी एप्लीकेशंस में यूज होता है, 2 और 3 मीडियम ड्यूटी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, और 4 जो है वो फटीग इंपैक्ट लोडिंग में या डायनेमिक लोडिंग में या उसमें यूज होते हैं, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस में यूज होते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो क्या होता है, हमको इसमें से कोई भी एक हमें दिया हुआ ग्रेड 2, तो हम डाटा बुक में जाएंगे और ग्रेड 2 के लिए 3 मिलीमीटर वायर की स्ट्रेंथ देख लेंगे कि SUT कितनी है। 3 मिलीमीटर, क्योंकि हमने ट्रायल कितने से लिया है, 3 मिलीमीटर से लिया है। तो देखिए मैं अभी आपको एक नया शेयर कर रहा हूँ डाटा बुक, ठीक है। डाटा बुक शेयर करता हूँ और वहां से मैं वैल्यू उठा लूंगा SUT की। आई एम डूइंग न्यू शेयर and I am taking the data book. So this is the data book share. हाँ जी, डाटा बुक दिखाई पड़ रही है आपको, डाटा बुक स्प्रिंग्स 10 चैप्टर दिख रहा है, यस सर। गुड। तो अब इसमें देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द स्प्रिंग स्टील वायर्स लिखा हुआ है। तो अब ये देखो कौन सा मटेरियल है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द पेटेंटेड एंड कोल्ड ड्रॉन स्टील वायर, यही मटेरियल है हमारा। अब उसके अंदर कितने ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। अब हमें कौन से ग्रेड पे काम करना है, ग्रेड नंबर 2 पे काम करना है। तो ग्रेड नंबर 2 में ये वायर डायमीटर है ना, 0.1 mm से स्टार्ट है। तो ग्रेड 2 की जो वैल्यू वो 0.3 से स्टार्ट है, तो हमें कितने पे जाना है, 3 मिलीमीटर पे जाना है। तो जरा इस टेबल को आगे बढ़ाइए और 3 मिलीमीटर पे हम देखते हैं। तो आप एक चीज और ऑब्जर्व करिए कि जब वायर डायमीटर 0.3 है तो SUT की वैल्यू कितनी है, 2060 मेगापास्कल। जैसे ही वायर डायमीटर इंक्रीज हो गया 0.32, तो SUT की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, है ना। तो स्प्रिंग के केस में सेम मटेरियल की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर इफेक्ट। तो इसी वजह से SUT कांस्टेंट नहीं है,
है ना। बाकी जब साफ डिजाइन पे आप काम करते हैं वहां एसयूटी कांस्टेंट होती है। इफ द मटेरियल इज फिक्स्ड देन एसयूटी इज फिक्स्ड, बट इन केस ऑफ स्प्रिंग एज द वायर डायमीटर इंक्रीजेस द एसयूटी डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे आप वायर डायमीटर को बढ़ाएंगे एसयूटी डिक्रीज हो गई। तो 3 मिलीमीटर पे देखिए कि कितनी एसयूटी है। तो ये 0.65 हो गया, 0.7 बढ़ाता जाते हैं आगे। 3 मिलीमीटर पे स्टॉप करना है। 2 मिलीमीटर पे 1720 एसयूटी है ना, ग्रेड 2 में। और 2 से आगे 3 मिलीमीटर पे देखिए कितनी एसयूटी है, 1570। दिख रहा है आप सबको 1570? संदीप, 3 मिलीमीटर वायर के लिए 1570 है ना। ये डाटा बुक आपको देखने आनी चाहिए। तो अब 1570 ये मैंने यहाँ देख लिया। मैं इसको स्टॉप शेयर कर देता हूँ, ठीक है। और मैं अब वापस अपनी वहीं पहुंच रहा हूँ पीपीटी में। तो पीपीटी को शेयर करता हूँ मैं यहाँ से। पीपीटी शेयर नहीं हो, न्यू शेयर कर लेते हैं, पावर पॉइंट शेयर। हाँ जी, अब दिख रही है आपको फ्रॉम करंट स्लाइड। इज द पीपीटी विजिबल? यस सर। हाँ, तो अब देखिए मैं यहाँ पे आ गया, मुझे 1570 मिल गया एसयूटी, है ना। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, टॉप परमिसिबल निकाल लूंगा 0.3 इंटू 1570। तो जरा मल्टीप्लाई करके बता दीजिए कितनी वैल्यू आ रही है। 471 571, मतलब मेरा 471 सर। 471, ठीक है, यस मेगा पास्कल। ये तो परमिसिबल वैल्यू हो गई। अब मुझे कैलकुलेट करना है कि मेरी स्प्रिंग में कितना इंड्यूस्ड स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला है, K मल्टीप्लाइड बाय 8pc डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब यहाँ पे K क्या है, वॉल फैक्टर है। तो पहले वॉल फैक्टर निकाल लेते हैं। K क्या होता है, 4c माइनस 1। C हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा है, स्प्रिंग इंडेक्स इज 5, तो 4c मतलब 20। तो 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 20 माइनस 4 प्लस 0.615 डिवाइडेड बाई C मतलब 5। इसको सॉल्व करिए, कितना आता है वॉल फैक्टर, बताइए कितना आता है। 1.311 1 पॉइंट, पूरा चार डिजिट तक बता दीजिए। 1.311 दोबारा करिए, शायद कुछ गलत हो रहा है। 4c minus 1 4c minus 4 plus 0.615 upon c, it is 19 divided by 16, 90 by 16 आएगा ना, 19 by 16 plus 0.615 divided by 5, 1.3105 है ना। तो 311 मत करिए उसे, 1.3105 ही रहने दीजिए। सो इट इज 1.3105, इट इज K मल्टीप्लाइड बाय 8p। व्हाट इज द P? P तो हमने निकाल लिया था क्वेश्चन में, कितना आया था, फोर्स 9 से डिवाइड करने के बाद 432.9 432.9 इंटू C इज 5 डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। डी हमने कितना जूम किया है ट्रायल एरर में, 3 मिलीमीटर, तो 3 स्क्वायर। ठीक है, अब सारी वैल्यू पता है, बताइए टॉ आई कितना आ रहा है आपका। इसको सॉल्व कर दीजिए कि इंड्यूस्ड स्ट्रेस कितना आ रहा है। 1.3105 into 8 into 432.9 into 5 divided by pi into 9. So it is coming 802.58. चेक करिए जरा, 802.58 मेगा पास्कल। ये हमारा इंड्यूस्ड स्ट्रेस है। अब ध्यान दीजिए, ये तो इंड्यूस्ड स्ट्रेस है और ये परमिसिबल स्ट्रेस है ना। स्प्रिंग मटेरियल 471 तक सेफ है, लेकिन हमारा स्ट्रेस कितना आ रहा है, 802। तो ये परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब द डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग इज अनसेफ, डिजाइन ऑफ द स्प्रिंग इज नॉट सेफ। तो आप क्या लिखेंगे, स्प्रिंग डिजाइन बिकॉज टॉ आई इज ग्रेटर देन टॉ पी, देयरफॉर द डिजाइन ऑफ स्प्रिंग इज अनसेफ। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जब अनसेफ है देन यू विल इंक्रीज द वायर डायमीटर। ठीक है, अब जैसे आप वायर डायमीटर 3 की जगह पे 4 करेंगे या 3.5 करेंगे, तो 4 mm के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब आपकी एसयूटी बदल जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप वायर डायमीटर बदलते हैं एसयूटी बदल जाती है। और एसयूटी कहां से मिलेगी, डाटा बुक से मिलेगी।
ठीक है, तो अभी 3 मिलीमीटर पे कितनी थी? 1570, तो 4 मिलीमीटर पे ये 1570 से भी कम होगी। ठीक है, तो आपका टॉपी बदल जाएगा। टॉपी के बाद में आपका इंड्यूस्ड स्ट्रेस अब भी बदल जाएगा क्योंकि वायर डायमीटर बदल गया। फिर आप दोबारा से कंपेयर करेंगे कि क्या डिजाइन ऑफ स्प्रिंग सेफ है। यदि सेफ है तो स्टॉप कर दीजिए, प्रोग्राम इज फिनिश्ड, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर रिपीटिशन। ठीक है, तो इसका आप जो है मैटलैब प्रोग्राम बना सकते हैं, है ना। ट्रायल एंड एरर में लूप लगा सकते हैं, वायर डायमीटर को इंक्रीज करते रहिए, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपकी जो है स्प्रिंग सेफ हो जाए, है ना। तो मैनुअल केसेस में आप थोड़ा ज्यादा वैल्यू से बढ़ सकते हैं, 3 से 3.5, 3.5 से 4, 4 से 4.5, इस तरह से कर सकते हैं। और जब आप कंप्यूटर प्रोग्राम करेंगे तो आप थोड़ी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, 3 से 3.1 है या 3.01, 3.02, बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाएगी कि किस पॉइंट पे हमारी स्प्रिंग सेफ है, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल एंड एरर। अब आगे चलते हैं, स्प्रिंग डिजाइन फॉर द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। दिस इज द लास्ट टॉपिक इन द हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, इसके बाद हमारा हेलिकल स्प्रिंग फिनिश होगा, फिर हम पावर स्क्रू स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बहुत इजी है। फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में क्या होता है? पी मिनिमम होता है और पी मैक्सिमम होता है। ठीक है, एक मिनिमम फोर्स होता है, एक मैक्सिमम फोर्स होता है। इस दोनों वैल्यूज के बीच में फोर्स की वैल्यू चेंज करती है। फोर्स इज फ्लक्चुएटिंग। तो जब फोर्स फ्लक्चुएटिंग होता है तो आपको पता है कौन कौन सी थ्योरी आप लगाते थे? एक तो आप गुडमैन थ्योरी लगाते थे, एक आप सोडरबर्ग लगाते थे, याद आ रहा होगा, और एक आप क्या लगाते थे? गर्बर पैराबोला लगाते थे। तो इन तीनों थ्योरीज में आप क्या करते थे? जो ग्राफ है वो एक तो मीन स्ट्रेस में ग्राफ खिंचता था और एक आपका एम्पलीट्यूड स्ट्रेस में ग्राफ खिंचता था। ठीक है, तो एक आपका मीन स्ट्रेस होता था, है ना, तो सिग्मा एम और सिग्मा ए इस तरह से होते थे यदि टेंसाइल की बात है तो, है। लेकिन स्प्रिंग पर कौन से स्ट्रेस आते हैं? टॉर्जनल शियर स्ट्रेस आते हैं। तो यहां पर जो वर्किंग होती है वो मीन शियर स्ट्रेस और एम्पलीट्यूड शियर स्ट्रेस के बीच में होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले मीन फोर्स निकाल लेंगे, फिर उसके बाद एम्पलीट्यूड फोर्स निकाल लेंगे, है ना। मीन फोर्स इज द एवरेज फोर्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम, एंड एम्पलीट्यूड फोर्स इज द डिफरेंस ऑफ बोथ द फोर्सेस डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूले आपको एज यूजुअल पता है, तो इन दोनों को यूज कर लेंगे। इसके बाद आपको निकालना है मीन शियर स्ट्रेस। तो मीन शियर स्ट्रेस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? Ks into 8 PMD डिवाइड बाई पाई डी क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Ks into 8 PMC डिवाइडेड बाई पाई डी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। तो मीन स्ट्रेस के लिए तो डायरेक्ट शियर स्ट्रेस फैक्टर यूज होता है, और एम्पलीट्यूड के लिए कर्वेचर सहित यानी कि वॉल फैक्टर यूज होता है। तो देखो टॉ एम का फॉर्मूला Ks into 8 PMC डिवाइड बाई पाई डी स्क्वायर, और एम्पलीट्यूड शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा K into 8 PAC डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एज यूजुअल। तो टॉ एम निकल जाएगा, टॉ ए निकल जाएगा, और उसके बाद ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का ये फॉर्मूला डाटा बुक में गिवन है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके आप अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। समटाइम्स द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज नॉट गिवन, so you can find the factor of safety from here, और या इस factor of safety is given, then you can find the other value। तो अब इसमें एक साइंटिस्ट हैं एल्मनडॉर्फ। The name of the scientist is एल्मनडॉर्फ। तो उन्होंने कुछ चीजें सजेस्ट की हैं फ्लक्चुएटिंग के केस में। तो ये एक ग्राफ है जिसमें टाइम के रेस्पेक्ट में स्प्रिंग के ऊपर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस बदलते रहते हैं। तो उनकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसकी एंडोरेंस लिमिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, एंडोरेंस लिमिट। तो फॉर द सेफ डिजाइन द डेवलप्ड शियर स्ट्रेस शुड बी लेस देन द एंडोरेंस लिमिट। अब ये एल्मनडॉर्फ रिलेशनशिप सजेस्टेड बाय H.J. एल्मनडॉर्फ। तो जब भी हम स्प्रिंग डिजाइन करेंगे तो उसमें ये रिलेशंस का यूज करते हैं। तो जनरली दो मटेरियल हैं, एक तो पेटेंटेड एंड कोल्ड ड्रॉन। फॉर दिस मटेरियल endurance limit is given by 0.21 SUT and shear strength yield strength in shear is given by 0.42 SUT। ये दो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे if the material is patented and cold drawn। for oil hardened and tempered steel wire, है ना, इसके अंदर भी जैसे इसके अंदर 4 ग्रेड आते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4।
तो ऑयल हार्डन्ड एंड टेम्पर्ड स्टील वायर के अंदर भी दो ग्रेड आते हैं, एक SW और एक VW। ठीक है, SW का मतलब स्प्रिंग वायर और VW का मतलब वॉल्व स्प्रिंग वायर। ठीक है, तो इनके लिए फिर हम एल्मंडॉर्फ ने ये फॉर्मूले सजेस्ट किए हैं। यहाँ 0.21 की जगह यहाँ 0.22 है, 0.42 की जगह यहाँ 0.45 है ना, गिवन इन डेटा। तो ये फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस की कहानी हो गई। अब एक न्यूमेरिकल हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के ऊपर। सो ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग ऑफ ए कैम मैकेनिज्म is subjected to an initial preload of 50 Newton. The maximum operating force during the load cycle is 150 Newton. ठीक है, तो देखो मैक्सिमम वैल्यू है 150 न्यूटन, P maximum is given 150 Newton and the initial force is 50 Newton, so you can take is P minimum. So P minimum is 50 Newton. So once P maximum is given, P minimum is given, then you can find the mean force. So mean force is 150 plus 50 divided by 2, so it is 100 megapascal. Not Pascal, it is 100 Newton because it is a force. Now PA is given by 150 minus 50 divided by 2, so it is 50 Newton. So both the forces are available. ठीक है, अब जब फोर्स अवेलेबल हैं तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का कोर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि मैं दो फोर्स दिए हुए हैं, मैक्सिमम मिनिमम फोर्स। समझ जाइए किसका क्वेश्चन है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में क्या काम करना रहता है, सबसे पहले मीन फोर्स निकालिए, फिर एम्पलीट्यूड फोर्स निकालिए, फिर शियर स्ट्रेस मीन निकालिए, फिर शियर स्ट्रेस एम्पलीट्यूड निकालिए। ठीक है, अब शियर स्ट्रेस मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, KS इंटू 8PC डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर। अब KS क्या है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस फैक्टर, तो इसकी फॉर्मूला होती है G1 + 0.5/C। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, C दिया हुआ है क्या, वायर डायमीटर इज 3, द मीन कॉइल डायमीटर इज 18। तो देखो जब दोनों डायमीटर दिए हों तो स्प्रिंग इंडेक्स क्या होता है, D/D। तो 18/3 कितना हो गया, 6 है ना, स्प्रिंग इंडेक्स इज 6, तो C इज गिवन 6। सो द डायरेक्ट स्ट्रेस फैक्टर इज गिवन बाय 0.5/6। सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, 1 + 0.5/6, बताइए कितना आ रहा है, 1.083 है ना। तो ये आ रहा है 1.0833 इंटू 8 इंटू फोर्स। अब बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि फोर्स कितना है, बताओ। फोर्स तो यही है, मीन फोर्स 100 न्यूटन, सो इट इज 100 इंटू स्प्रिंग इंडेक्स इज 6 डिवाइडेड बाय पाई इंटू वायर डायमीटर इज 3 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन में गिवन है 3 मिलीमीटर। तो यहां से आप जो है ये टॉ एम है ना, आप जो है टॉ एम निकाल सकते हैं। तो जरा ऐसे सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है टॉ एम। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। 183.91 183.91 और यूनिट होगी इसकी मेगा पास्कल। पास्कल। यस, 183.91 मेगा पास्कल। So mean stress is available. Now calculate the amplitude stress. So amplitude stress is given by, है ना, amplitude stress कैसे निकालोगे, amplitude stress is K 8PC divided by pi d square। अब ये K क्या है, वॉल फैक्टर, और वॉल फैक्टर के लिए आपके पास 4 इंटू C माइनस 1, C कितना है आपका 6, तो 4 इंटू 6 माइनस 1, 4 इंटू 6 माइनस 4, 0.615 डिवाइडेड बाई 6। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है वॉल फैक्टर। हाँ जी, 1.2525। यस सर, 1.2525। ठीक है, तो नाउ यू कैन गो फॉर दिस 1.2525 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू फोर्स। फोर्स कितना था, अब कौन सा फोर्स लोगे, जब एम्पलीट्यूड स्ट्रेस है तो यहाँ पे कौन सा फोर्स आएगा, एम्पलीट्यूड का फोर्स आएगा, और एम्पलीट्यूड का फोर्स हमने निकाला था कितना, 50 न्यूटन, PA 50 न्यूटन। तो अब यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 50 आएगी, इट इज 50 इंटू स्प्रिंग इंडेक्स इज 6 डिवाइडेड बाय पाई डी, वायर डायमीटर इज 3 अगेन। नाउ सॉल्व इट, इंड्यूस्ड स्ट्रेस, व्हाट इज टॉ ए, सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है,
मैं जब तक इसकी इंक क्लियर कर लेता हूं। हाँ जी, 106.316. 106.316 ये तो है हमारा एम्पलीट्यूड स्ट्रेस, और मीन स्ट्रेस कितना आया था? 183.91. 183.91 मेगा पास्कल। तो देखिए हमने मीन स्ट्रेस भी निकाल लिया, एम्पलीट्यूड स्ट्रेस भी निकाल लिया, करेक्ट। तो अब हम जाते हैं फॉर्मूले पे कि इस क्वेश्चन फार्मूला हमारा क्या है सॉल्व करने का। तो देखिए फॉर्मूला हमारा ये है ना, यहाँ पर भी हम इंक क्लियर कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमें यूज करना है फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में, ये वाला फॉर्मूला। तो अब इस फॉर्मूले में देखो, ये टॉय क्या है? एम्पलीट्यूड स्ट्रेस। तो एम्पलीट्यूड स्ट्रेस अभी हम निकाल चुके, है ना, हम निकाल चुके। कितनी वैल्यू आई है? उसकी वैल्यू आई है 106.316। तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 106.316 टॉय हम निकाल चुके, टॉ एम भी हम निकाल चुके। टॉ एम हमारा आया था 183.91, तो 183.91। तो देखिए टॉय हमारे पास है, टॉ एम हमारे पास है। एसएसवाई, एसएसवाई क्या होता है? यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर, ठीक है, यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर। तो इसको हम निकालेंगे किसकी हेल्प से? एल्मंडॉर्फ के इक्वेशन की हेल्प से। एल्मंडॉर्फ, है ना, एल्मंडॉर्फ की गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, ठीक है। दूसरा एसएससी डैश, ये क्या है? एंडोरेंस लिमिट। दिस इज द एंडोरेंस लिमिट। तो एंडोरेंस लिमिट हम कैसे निकालेंगे? अगेन एल्मंडॉर्फ की हेल्प से, एल्मंडॉर्फ की हेल्प से। तो ये दो पैरामीटर हम एल्मंडॉर्फ की हेल्प से निकालेंगे। टॉय हम निकाल चुके हैं, टॉयम हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें एस एस वाई तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया, एस एस सी डैश वही है। तो केवल एक पैरामीटर बचा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है ना, जरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में पूछा है डिटरमिन, लास्ट लाइन देखिए, डिटरमिन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज्ड इन द डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। तो हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो वैल्यूज पुट करने के लिए मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वैल्यूज को। यहाँ पर मान लीजिए टॉय, टॉय हमारा है 183.91, इट इज द न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एस एस वाई, ठीक है। अब एस एस वाई एल्मंडॉर्फ से निकलेगा, तो एस एस वाई के लिए फॉर्मूला है 0.21 SUT, और एस एस ई के लिए फॉर्मूला नहीं, एस एस ई के लिए है 0.21 SUT, और एस एस वाई के लिए है डबल इसका 0.42, 21 दूनी 42, ऐसे याद रख सकते हैं। तो एंडोरेंस लिमिट के लिए 0.21 और यील्ड स्ट्रेंथ इन शियर के लिए 0.42, ये किसके हिसाब से? एल्मंडॉर्फ के हिसाब से। तो हम इसे निकालेंगे 0.42 इंटू SUT। अब SUT क्या क्वेश्चन में गिवन है, देखिए जरा। बट सर ये तो स्प्रिंग सर मेड ऑफ ऑयल है, हार्डेड है ना, तो सर 0.42 आएगी ना, 0.45. राइट राइट, वो ले लेंगे, वो ले लेंगे, बिल्कुल, है ना। मटेरियल इज चेंज, तो वी विल चेंज, टेक द फॉर्मूला फॉर द ऑयल हार्डन एंड टेम्पर्ड, एंड SUT इज गिवन 1430। तो चलिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाले फॉर्मूले हम यूज करेंगे। तो इस फॉर्मूले में 0.22 इंटू SUT कितना है हमारा? 1430। सो 1430 सॉल्व करिए, कितना आता है? 0.22 इंटू 1430। हम ये क्यों ले रहे हैं? बिकॉज द मटेरियल इज गिवन ऑयल हार्डन। So 0.22 into 1430, it is coming 314.6 मेगा पास्कल। और ये भी निकाल लीजिए 0.45 into 1430, so this is coming 0.45 into 643.5. 643.5। Yes, sir. ओके, तो अभी दोनों वैल्यूज को मैं उधर ही लिख लेता हूं, ठीक है। 314.6 और 643.5। 314.6 है ना, ये अब आ गया 0.22 और ये हो गया 0.44। तो अब इनकी फाइनल वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, एक तो SSE आ गया और एक SSY आ गया। तो ये दोनों वैल्यू हमारी कितनी निकली हैं? ये निकली हैं 314.6, 314.6 और 643.5,
ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे न्यूमरेटर हम ऑलरेडी नोट कर चुके हैं, डिनोमिनेटर इज SSY. So SSY as per Elmendorf is coming 643.5 divided by factor of safety is unknown for us minus mean stress. Mean stress is 183.91. 183.91 equal to SSC dash. SSC dash is coming 314.6 divided by 2, it is the numerator, whole divided by SSY. SSY is 643.5 minus 314.6 divided by 2. ये हमारा फॉर्मूला बना और इस पूरे फॉर्मूले में केवल एक ही अननोन है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो यू कैन डिटरमिन द फैक्टर ऑफ सेफ्टी अंडर द फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस. तो इसको जरा सॉल्व करिए, कितना आ रहा है फैक्टर ऑफ सेफ्टी. हाँ, उठाइए कैलकुलेटर और सॉल्व करिए. So what is the factor of safety coming over here? 1.255. Factor of safety is coming 1.25, है ना. तो उसका आंसर जरा मिला लेते हैं. आंसर इज रिटन ओवर हियर 1.255 यानी कि 1.26. तो आवर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, तो फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस में क्या करना है, एल्मंडॉर्फ की गाइडलाइंस को फॉलो करना है, मीन टॉर्जनल स्ट्रेस निकालना है और आपको एम्पलीट्यूड टॉर्जनल स्ट्रेस भी निकालना है. देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. तो देखिए, अब तक मैं समराइज कर दूं हेलिकल स्प्रिंग में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ना. हेलिकल स्प्रिंग जनरली दो मटेरियल इंपॉर्टेंट होते हैं, पेटेंटेड एंड कोल्ड्रॉन, जिसमें 4 ग्रेड्स आते हैं. दूसरा ऑयल हार्डन एंड टेम्पर्ड, और इसके अलावा स्टेनलेस स्प्रिंग भी होता है जो कोरोजिव एनवायरनमेंट में यदि स्प्रिंग यूज होनी है तो उसको वहां पे यूज करते हैं. ठीक है, तो स्प्रिंग एक इलास्टिक एलिमेंट होता है. ठीक है, और स्प्रिंग की डिजाइन में ट्रायल एंड एरर मेथड होती है जो कि काफी प्रैक्टिस में है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में. जनरली वो लोग ट्रायल एंड एरर से डिजाइन करते हैं. और एक वैसी प्रोसीजर है फॉर्मूला बेस्ड, है ना. हमने दोनों मेथड से न्यूमेरिकल सॉल्व किए और इसके बाद फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, वो भी हमने कर लिया. सो दिस कंप्लीट्स आवर डिजाइन ऑफ हेलिकल स्प्रिंग्स. ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट पावर स्क्रू. ठीक है, उसके बाद हम लीफ स्प्रिंग पर आएंगे. तो टाइम भी अब पूरा हो रहा है. कोई क्वेरी है प्लीज तो आस्क, अदरवाइज आई एम स्टॉप शेयरिंग. क्लासेस सर 5 दिसंबर तक चलेंगी. हाँ, बस 5 दिसंबर तक ही चलेंगी, है ना. उसके बाद एंड हो जाएंगी. और पेपर का मैं 1-2 क्लास में हम लोग कुछ भी करेंगे. पेपर तो का पेपर टाइम टेबल आएगा आपके पास मेल पे, है ना. फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक जो भी टाइम टेबल होगा वो आ जाएगा. प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे क्या सर? हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होंगे, है ना. ऑनलाइन या जैसे भी होंगे, जो भी गाइडलाइंस आएंगे उसके हिसाब से. अभी आप फाइल, अच्छा फाइल में बता दूं, प्रैक्टिकल फाइल में टोटल देयर आर 10 एक्सपेरिमेंट्स. उसमें से आप 8 एक्सपेरिमेंट फाइल में लिख के भेज दीजिए मुझे. ठीक है, और 8 में से भी मैं बेस्ट 6 की मार्किंग करूंगा. ठीक है, तो अब सबका असाइनमेंट मतलब प्रैक्टिकल लैब फाइल आ जानी चाहिए सबकी मेरे पास. लैब फाइल नहीं भेजेंगे तो फिर 0 मार्क्स हो जाएंगे टीए में, है ना. लैब के टीए में 0 मार्क्स हो जाएंगे आपके. मैंने बहुत इजी कर दिया है. 10 में आप 8 भेजिए और 8 में भी बेस्ट 6 की मार्किंग हो जाएगी, है ना. ये ऑनलाइन की वजह से आपको एडवांटेज दिया जा रहा है. सर मैनुअल सॉल्यूशन लिखना जरूरी है सर उसमें? हाँ, मैनुअल सॉल्यूशन लिखना है क्योंकि रिजल्ट्स में आपको कंपेयर करना है कि आपके मैनुअल और सॉफ्टवेयर रिजल्ट्स आर मैचिंग. ठीक है, और इस बहाने आपकी तैयारी भी हो जाएगी, है ना. मैनुअल सॉल्यूशन करेंगे तो आपको तैयारी भी हो जाएगी. अच्छा, हेलिकल स्प्रिंग के केस में आपको ट्रायल एंड एरर वाला जो ये क्वेश्चन था अभी जो हमने किया है, इस क्वेश्चन का मैटलैब प्रोग्राम बना के सबमिट करना है ना. और ये किसी लूप से कर सकते हैं आप, व्हाइल लूप लगाओ या फॉर लूप लगाओ, है ना. मैं लैब की क्लास में लूप लगा के बता दूंगा कैसे आप लूप लगा सकते हैं, वायर को इंक्रीज कर सकते हैं, सेफ डिजाइन तक पहुंच सकते हैं. तो ट्रायल एंड एरर वाला जो क्वेश्चन है वो आपको लैब फाइल में लगा. ठीक है, तो अब हम एंड करते हैं. 2 से 3 फिर दोबारा मिलते हैं. ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग.